ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨ ਦੇਵਤਾ ਯਾਨੀ ਸੋਮ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਕਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 27 ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਕਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਮ ਦੀ ਚਮਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਨੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੀਰਥ 'ਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਸ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਚਮਕ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ? ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਾਣ ਸਤੰਭ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣ ਸਤੰਭ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੱਕ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕੋ-ਫਾਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਇਕ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਹਮਲੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੁੱਤ ਤੋੜਨਾ, ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮਨਾਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰੋਤ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮਦੇਵ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਜਿਕ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ KM ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕਮ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਮਕੀਨ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਵਪਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ बनाए रखने की एक बहुत ही गुंजलदार यात्रा की निशानी है। आज हम आपके भेजे गए मवाद का तफसीली जायजा ले रहे हैं जी, खासतौर पर भारतीय सकाफत, तारीख और सोमनाथ मंदिर के हवाले से। बिल्कुल। हमारे पास कुछ मुतालाती नोट्स हैं
तारीखी तज्जिए भी, हाँ। जैसे रोमिला थापर के, और मंदिर की अहमियत पर मज़ामीन। सही। तो कोशिश ये है कि इनसे अहम बातें समझें और शायद कुछ आम ख्यालात पर एक नई नज़र डालें। जरूर जरूर, चले शुरू करते हैं। तो सोमनाथ से ही शुरू करें। जी है, सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के प्रभास क्षेत्र में वाक़ है अच्छा, और इसका जिक्र बहुत पुराना है, ऋग्वेद तक में मिलता है। ऋग्वेद में भी? वाह। जी हाँ, नाम का मतलब भी दिलचस्प है, चांद का मुहाफिज। चांद का मुहाफिज। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है, यानी शिव के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक। ओह अच्छा, और इसकी तामीर के बारे में क्या खास है? देखिए, जो रिवायती हिंदू मंदिर होते हैं ना जी। उनका डिजाइन अक्सर वास्तु पुरुष मंडल पर बना होता है। वास्तु पुरुष मंडल? जी, ये एक तरह का कायनाती नक्शा है जो मंदिर की तामीर की बुनियाद बनता है, हिंदसाती भी और रूहानी भी। ये तो बहुत गहरी बात है। और सोमनाथ की एक और खास बात, जो मौजूदा मंदिर है वो चालुक्य तर्ज का है। चालुक्य तर्ज? जी, बहुत नफीस नक्शो निगार वाला अंदाज है। तो उसकी एक मुनफरिद कायनाती सीध भी है। वो क्या है? कहा जाता है कि इसके मरकजी लिंगम और कुतुब जनूबी के बीच सीधी लकीर में कोई जमीन नहीं आती। वाकई? यानी कोई जमीनी रुकावट नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से जमीन को कायनात से जोड़ता है। जबरदस्त। अच्छा, अब जरा तारीख की तरफ आए। जराए में तो काफी पेचीदगियां नजर आती हैं। जी बिल्कुल। 11वीं सदी का महमूद गजनवी का हमला तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो तो अक्सर सुना जाता है। तुर्क फारसी तारीखें इसका जिक्र करती हैं और बुत शिकनी पर काफी जोर देती हैं। जी। लेकिन तारीखदान जैसे रोमेला थापर हैं, वो दूसरे पहलू भी सामने लाते हैं। मसलन? यानी सियासी मकासद भी थे, इलाके पर कंट्रोल की ख्वाहिश और जाहिर है दौलत का हुसूल भी एक बड़ा उनसुर था। ठीक। मगर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वो क्या? कि उसी दौर के जो मकामी जराए हैं ना, हाँ। संस्कृत और जैन तहरीरें, हाँ। जो बाद में मंदिर की मुरम्मत का जिक्र तो करती हैं, हाँ। लेकिन इस हमले का जिक्र वो नहीं करती। क्या मतलब? हमले का जिक्र ही नहीं? ये कैसे मुमकिन है? यही तो हैरानकुन है। इससे सवाल उठता है कि तारीख को कैसे याद रखा गया, किसने याद रखा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और देखें, ताल्लुकात सिर्फ तसादुम की नहीं थे। एक और मिसाल है, 1264 ईस्वी का एक संस्कृत कुतबा मिला है। यानी हमले के तकरीबन 200 साल बाद? जी हाँ, और ये सोमनाथ के करीब एक मस्जिद की तामीर का जिक्र करता है। मस्जिद की तामीर? जी, एक फारसी ताजिर थे नूरुद्दीन फिरोज, उन्होंने बनवाई। और मदद किसने की? मकामी हिंदू राजा, ताजिर। अच्छा। और यहाँ तक के मंदिर के पुजारियों ने भी चंदा दिया, मंदिर की जमीन से भी वसाइल दिए। इसी सोमनाथ के इलाके में? ये तो इस आम ख्याल से बहुत मुख्तलिफ है जो हमें बताया जाता है। बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि असल में तारीख ज्यादा मिली जुली थी, सादा नहीं थी। तो ये जो आज का बयानिया है गजनवी हमले का, हाँ। उसकी तश्कील में असल में नो आबादियाती दौर का बड़ा हाथ है। नो आबादियाती दौर का? जी, खास तौर पर 19वीं सदी में बरतानवी मुबाहिसों ने, जैसे लॉर्ड एलनबरो के जमाने में, एक खास हिंदू बमुकाबला मुस्लिम किस्म का बयानिया बनाया जो आज तक चल रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद क्या हुआ? मंदिर की तो दोबारा तामीर हुई। जी हाँ, बिल्कुल। आजादी के फौरन बाद ही काम शुरू हुआ। सरदार पटेल ने इसकी क़यादत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? जी, और उनके इंतकाल के बाद के एम मुंशी ने इस काम को आगे बढ़ाया और मुकम्मल करवाया। और इसके लिए पैसे कहाँ से आए? ये दिलचस्प बात है कि सारा पैसा अवामी चंदे से आया। सरकारी पैसा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाम साहब यानी जामनगर के जो महाराजा थे, सामलदास गांधी, और बहुत से आम लोगों ने अतियात दिए। तो ये अवामी मंसूबे की तरह था। हुकूमत का क्या मौकफ था? यहाँ नेहरू का किरदार अहम है। उनका ख्याल था कि रियासत को सेक्युलर रहना चाहिए, यानी सरकारी खजाने से मजहबी तामीरात नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हुकूमती लोग या आम शहरी अपनी जाती हैसियत में हिस्सा ले सकते हैं। तो हुकूमत ने बराह रास्त फंडिंग नहीं की, लेकिन तामीर नौ हो गई। जी बिल्कुल। और आज ये मंदिर उसी चालुक्य तर्ज में एक बहुत बड़ा ज़ियारतगाह भी है और सकाफती मरकज भी। सोमनाथ की कहानी वाकई तारीख, तबाही, तामीर नौ और सियासत का एक मुकम्मल बाब है। जी हाँ। लेकिन जैसा आपके जराये में भी जिक्र है, भारत का सकाफती मंजरनामा तो बहुत वसी है। बिल्कुल, सिर्फ सोमनाथ ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जराये में हम्पी के विटला मंदिर का जिक्र है, विजयनगर सल्तनत के जमाने का। हम्पी का विटला मंदिर? जी, देवराया दोम और खास तौर पर कृष्ण देवराया ने इसे तौसी दी। ये अपने पत्थर के रथ के लिए मशहूर है। हाँ, वो तो देखा है तस्वीरों में। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन है इसके मौसीकी के सुतून। मौसीकी के सुतून वो क्या है? कहते हैं इन सुतूनों को हल्का सा थपथपाने से मौसीकी की सुरें निकलती हैं। वाह, ये तो कमाल है ना? ये कदीम इंजीनियरिंग और फनकारी का नमूना है। बिल्कुल। और कोई मिसाल? एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हाथ से बना कागज। हाथ से बना कागज? जी, मोनशोगो कहलाता है। 1000 साल पुरानी रिवायत है। ये एक खास दरख्त की छाल से बनता है। 1000 साल पुरानी? जी, और हाल ही में केवीसीआई यानी खादी कमीशन ने इसे दोबारा जिंदा करने में मदद की है। अच्छा, तो ये भी एक तरह की सकाफती बहाली है। बिल्कुल, ये मोनपा कबीले की शनाख्त का हिस्सा है और माहौल दोस्त भी है। तो ये सारी मिसालें, सोमनाथ की तामीर नौ, विटला मंदिर का फन,
मोनपा कागज की रिवायत, ये सब क्या दिखाती हैं? देखिए, ये सब मिलकर एक बहुत गहरी और पेचीदा तस्वीर बनाती हैं। मंदिर सिर्फ इबादत गाहें नहीं रहे हैं, वो फन, सियासत, माइशत, इन सब से जुड़े हुए हैं। और उनके बारे में कहानियां भी बदलती रही हैं। जी बिल्कुल, सोमनाथ खुद इसकी मिसाल है। कदीम एहतराम, फिर तबाही, फिर तामीर नो, फिर उसकी तारीख पर मुख्तलिफ बयानिए, और आज भी उसकी अहमियत कायम है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की क्या बात रह जाती है? मेरे ख्याल में सबसे अहम नुक्ता यह है कि हम माजी को कैसे याद रखते हैं। खास तौर पर जो मुतनाज़ा वाक़यात हैं, उनकी कहानियां अक्सर बाद का ज़माने में, चाहे वो नौआबादियाती दौर हो या आज की सियासत, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बदली जाती हैं। यानी तारीख सिर्फ वो नहीं जो हुआ, बल्कि वो भी है जो याद रखा गया या याद करवाया गया। बिल्कुल, तो ये समझना कि तारीखी याददाश्त खुद कैसे बनती है, कौन सी कहानी सामने लाई जाती है, कौन सी दबाई जाती है और क्यों, क्या इससे वाक़यात को देखने का हमारा अपना नजरिया नहीं बदलता? वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है। सोचिए, एक मंदिर जिस पर 17 बार हमला हुआ, हर बार उसे धूल में मिलाया गया, पर वो आज भी समंदर के किनारे शान से खड़ा है। ये कहानी हार की नहीं, जिंदा रहने की जिद की है। ये कहानी सिर्फ पत्थर और सोने की नहीं, ये कहानी है अटूट आस्था की। ये कहानी है भारत के अमर गौरव की। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की। दोस्तों, वो ज्ञान हाजिर है जिसका इंतजार था। नमस्ते। आज कहानी उस मंदिर की जो जख्मों से नहीं, अपनी जिद से जाना जाता है। ये वो पवित्र धरती है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला, सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। पौराणिक कथा कहती है कि इस मंदिर को सबसे पहले खुद सोमदेव यानी चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। उन्हें एक श्राप के कारण अपनी सारी चमक, अपना सारा तेज खोना पड़ा था। तब उन्होंने यहीं 3 पवित्र नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर शिव की घोर तपस्या की और इसी पवित्र जल में स्नान करके अपनी खोई हुई चमक वापस पाई। इसके बाद इस मंदिर को त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनवाया था। सोचिए, इसकी शान और दौलत के चर्चे इतने थे कि अरब यात्री अल बिरूनी ने भी इसके वैभव के बारे में लिखा था। कल्पना कीजिए उस युग की जब मंदिर के 300 संगीतकार दिव्य धुनें छेड़ते थे और 500 नृत्यांगनाओं के घुंघरू सागर की लहरों के साथ ताल मिलाते थे। लेकिन यही चमक दुश्मनों की आंखों में खटकने लगी। हमलावरों की लहरें आईं, गजनवी से लेकर खिलजी और औरंगजेब तक। मकसद एक ही था, इस आस्था के सूरज को हमेशा के लिए बुझा देना। उन्होंने दीवारें गिराई, मूर्तियां तोड़ी, खजाना लूटा, पर वो उस विश्वास को नहीं लूट सके जो हर भारतीय के दिल में धड़कता था। पर हर चोट के बाद ये विश्वास और भी मजबूत हुआ। जितनी बार इसे गिराया गया, उतनी ही बार करोड़ों हाथों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये भारत की आत्मा का जीता जागता सबूत है। हर बार हमला हुआ और हर बार ये मंदिर राख से उठ खड़ा हुआ, जैसे पूरी दुनिया से कह रहा हो कि सच्ची आस्था को कोई तलवार नहीं काट सकती, कोई आंधी नहीं बुझा सकती। आजादी के बाद एक नए भारत ने जन्म लिया। तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया कि सोमनाथ फिर से अपनी पूरी शान से खड़ा होगा। ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, ये सदियों की गुलामी के जख्मों पर गर्व का मरहम था। ये ऐलान था कि भारत अपनी विरासत को फिर से हासिल कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज हम सोमनाथ का ये भव्य रूप देख पा रहे हैं, जो गुजरात के वेरावल में समंदर के किनारे शान से खड़ा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मंदिर में एक ऐसी चीज है जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है, एक बाण स्तंभ। इस स्तंभ पे संस्कृत में लिखा है कि इस बिंदु से लेकर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है, बिना सैटेलाइट या जीपीएस के। सोचिए, हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले ये ज्ञान कैसे था। ये वाकई में अविश्वसनीय है। सोमनाथ की कौन सी कहानी ने आपके दिल में गर्व भर दिया? कमेंट में जय सोमनाथ लिखकर अपनी आस्था दिखाइए। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस अमर विरासत को जान सके। लाइक और शेयर जरूर करें। सोमनाथ हमें सिखाता है कि आस्था को कोई मिटा नहीं सकता। वादा है, अगला वीडियो दुगुना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।